by Chennai Rhinos, and what a start they've had. Terrific start to this game. That's Alex. Dave, Anaconda. Come on, boys. Set field. Come on, new batsman. Come on, boys. Let's take him. Jiva to continue. 3 for 9 for him. Well, drifting down the leg side. This outfield is lightning quick. This will go to the boundary. First boundary. With a bit of relief for Veer Marathi. Let's go down to Supreet. Hello and welcome. I'm Supreet Bedi, bringing you all the boundary side gupshup here at the Triple X Energy Drink CCL. मेरे साथ हैं अभी बहुत ही talented and gorgeous Tamil actresses who representing Chennai Rhinos. यहाँ बहुत ही धमाकेदार मैच हो रहा है यहाँ पे, and I'm sure you girls would agree. इनके खड़े-खड़े 3 विकेट गई थी, तो इसलिए अब लोगों ने कहा है कि इनका यहाँ खड़े रहना जरूरी है. I don't know if it's superstition or what. I think you need to talk to me all day. So let's start now. What's the energy like, and what do you have to say about this fantastic beginning? See, it's a great crowd here. We are enjoying our time, and it's really great, this thing, sponsors and everybody we'd like to thank, and we are having a good time. And here is cheering up, and especially our Chennai Rhinos are like rocking. Especially Barry is rocking, like 2 wickets he has taken. So it's really cool. The match is going on great. So I hope Chennai Rhinos win. Well, that's Madhirakshi and Manisha Shri. Moving on to Sonia Agarwal. Considering you're an actor yourselves, आपको क्या लगता है ये जो amalgamation है acting और जो cricket में अब आई है, जो एक passion मिलकर आया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? It's great. I mean, I've been part of CCL for last all the seasons, and this is the 5th season going on, and I think it's doing really well. दोनों चीजों का, like, actors playing cricket, and I think people, the audience enjoy it all the more. It's like a double delight for them, So yeah, it's a very good idea. Even for actors, as I always said, that it's a point where they relax and they do something different, and they enjoy themselves. And were you girls expecting कि 4 wickets जाएंगी, वो भी इतनी जल्दी? No, actually we didn't. But from the first wicket, like from the time Barry had taken 1 wicket. And then we were like so happy, like we are not supposed to change place. That's why we are standing here. So I'm sorry, viewers, you'll have to see us all through the match now. This is it. This is a superstitious position for Chennai Rhinos. Yay! There's lots more action still going on. Today is going to be a rocking match, isn't it? But do you think, as actors, this brings instant gratification? Because जब आप normally movies करते हैं तो बहुत देर wait करते हैं, लेकिन अभी instant gratification from the crowd, कुछ अच्छा होता है तो response वही मिलता है. Let's hear it from you. I mean, yeah, we're just hoping that Chennai wins, and we are doing very great. We're practicing and we're doing very great. I'm hoping that Chennai wins. We're cheering for Chennai. Let's hear you cheer then. 3, 2, 1. Let's hear a cheer. With that cheers, we're going to go back to the commentary box now. The energy levels are high, aren't they? Terrific start as far as Chennai Rhinos are concerned. Wide delivery. Atul Vasan has made his way, and Debayan has walked in the commentary box. Good afternoon, Debayan. Yes, good afternoon, Amol. ये है बिग ब्रदर फाउंडेशन जो कि हर रन के लिए CCL 2015 में 1000 रुपए डोनेट करेगी. बहुत बेहतरीन पहल, लेकिन ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव ओवर साबित होता हुआ चेन्नई राइनोज के लिए. कप्तान जीवा अपना तीसरी लगातार ओवर करते हुए 15 रन दे चुके हैं और वाइड्स कई सारे डाले हैं, तो अनुशासन पे थोड़ी सी यहाँ पे ध्यान देनी पड़ेगी कप्तान को. 6 ओवर के बाद 33 पे 4.
बेहतरीन एटमॉस्फेयर यहाँ पर चिन्नस्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में, और क्या स्टार्ट चेन्नई राइनोज द्वारा। 33 पे 4 शरद केलकर नॉट आउट 10 पर बैटिंग कर रहे हैं, और लश्कारिया उनका अच्छा साथ निभा रहे हैं। और अमोल, सबसे डिसअपॉइंटिंग चीज होगी वीर मराठी के लिए कि जितने 4 विकेट गिरे हैं उनमें से 3 थोड़े से अननेसेसरी थे। बड़े शॉट्स खेलने की कोशिश की थी, हालांकि काफी हरी विकेट है, हरी सतह है, लेकिन उसके वजह से विकेट ज्यादातर नहीं गिरे। नहीं, बिल्कुल नहीं, सतह से कोई ज्यादा उछाल नहीं था, अतिरिक्त उछाल नहीं था, पर जो शॉट सिलेक्शन था वो थोड़ा सा उनको वापस दोबारा सोचना पड़ेगा। मैं और अतुल यही बात कर रहे थे कि अगर आप एज ए बैट्समैन अगर आप हवा में खेलते हैं तो एक मौका जरूर बनता है फील्डर को कैच पकड़ने के लिए। ये पिछले ओवर में शरद केलकर ने जो एक हवाई शॉट मारा था वो बिल्कुल अच्छे प्लेसमेंट, क्योंकि यहाँ पे फील्डर रहने का कोई फायदा भी नहीं होता, और इसी की जरूरत है, लेकिन उसके साथ साथ विकेट्स भी रोकने की जरूरत है। यहाँ पे एक थोड़ा सा कंफ्यूजन था कप्तान के दिमाग में, पहले किसी और को गेंद थमाई थी, लेकिन आखिरकार शांतनु को गेंद पकड़ाई है 7वें ओवर के लिए। अब पावर प्लेस भी हट चुके हैं, यानी फील्डर्स को भी फैला सकते हैं ज्यादा कप्तान। वो छक्का जो मारा था काफी राहत मिली होगी वीर मराठी को। जब आप हवा में खेलना चाहते हैं तो आपको गेंद बाउंड्री के पार ही लगानी होती है। बहुत ही अच्छा वातावरण यहाँ पे क्रिकेट के लिए, ज्यादा गर्मी नहीं है और इसी वजह से ज्यादा खिलाड़ियों को फायदा भी होगा। यहाँ पे वाइड बॉल का इशारा जरूर हो सकता है। 35 पहुंच चुके हैं वीर मराठी, और उनके लिए ये कितना इंपॉर्टेंट मैच है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं पॉइंट्स टेबल से, क्योंकि इस पे देखिए वीर मराठी फिलहाल 3रे स्थान पे हैं। यहाँ पे अगर हार जाए तो मुंबई हीरोज और चेन्नई राइनोज ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर जाएंगे सेमीफाइनल्स के लिए। फिर से विकेट का पतन, और एक कार्या आके अच्छा खेल रहे थे, एक चौका भी लगा चुके थे, लेकिन वो बने शांतनु के पहले शिकार। क्या हो रहा है यहाँ पर चिन्नस्वामी स्टेडियम में? 35 पे 5 है। वीर मराठी की पूरी टॉप ऑर्डर लड़खड़ाती हुई। ये देखिए, छोटी गेंद कट कर दिया, पर सीधे हाथ में पॉइंट फील्डर ने कोई गलती नहीं की। चेन्नई राइनोज पूरे के पूरे हावी होते हुए वीर मराठी पर। लश्कारिया 6 रन बनाकर वापस 35 पे 5। Coming right arm over, batsman. Yeah. Slightly towards you. That's your leg stump, correct. Right arm over, batsman. 7वें ओवर में नंबर 7 को बल्लेबाजी करना पड़ रहा है वीर मराठी के लिए। राहुल गोरे हैं नए बल्लेबाज। स्ट्राइक रेट बहुत उम्दा, लेकिन एवरेज जो है उससे कहीं बेहतर आज प्रदर्शन करना पड़ेगा। अमोल, एक चीज की तारीफ जरूर करेंगे, चेन्नई राइनोज ने अपने जितने भी चांसेस उन्हें मिले हैं उनका फायदा उठाया। कैचेस बिल्कुल ड्रॉप नहीं किए, इसी वजह से 5 विकेट गिरे हैं। It's a cliche, Devayan, catches win matches, but it's right, it's true. That's the reason you always keep talking. Catches win matches. They've plucked on to every single chance that they've been offered. Shot, shot.
थोड़ी सी हेजिटेशन जरूर रही थी, लेकिन उसके बावजूद एक रन आसानी से पूरा किया। ऑफ द मार्क राहुल गोरे। शांतनु एक और ऐसे गेंदबाज जिन्होंने बिल्कुल अपने पहले ही ओवर में विकेट ले लिया है। ट्विटर पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं @CCL। बताइए आपके फेवरेट प्लेयर्स कौन है, फेवरेट टीम्स कौन सी हैं, किन के लिए आप चीयर कर रहे हैं इस XXX एनर्जी ड्रिंक CCL में। कप्तान काफी चिंतित लग रहे हैं क्योंकि ये आधी टीम ऑल आउट या आउट हो चुकी है और सिर्फ 7वें ही ओवर में खेल है अभी। ये अच्छा ड्राइव, इससे सीख लेनी होगी वीर मराठी को। अगर ड्राइव करना चाहते हैं तो प्ले इट ऑल अलोंग द ग्राउंड। यहाँ 5 विकेट गिर चुके हैं। 100 Hearts initiative. Donate now at hridaya.com to save a life. It's a great initiative. Be a part of it. Again, a little bit of hesitation. But it's 37 for 5 after 7. Going. Positivity, both sides. शरद केलकर के ऊपर काफी बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि थोड़ी सी सेटल कर चुके हैं। 10 गेंदें खेल चुके हैं, लेकिन साथ साथ देखिए कितने सारे विकेट्स निकाल चुकी है चेन्नई राइनोज। याद रखिए उन्होंने ही टॉस जीता था, सबसे पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और अमोल उसको पूरी तरह से साबित करते हुए कि क्यों इस सतह पे उनके लिए सही डिसीजन रहा। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही डिसीजंस। और एक और प्रश्न अंपायर के पास और is going upstairs again. The third umpire will come into play. So pending decision, and we'll have to wait and see whether that back leg was lifted or not. No ball, not a problem. First part is fine. Let's have a look at the second one. Keep an eye on the back leg. That's out of the crease at the moment. Whether he got it back in time or no. Yes, he has. Yes, he has. But that's a good call by the square leg umpire to go upstairs. जी हाँ, काफी करीबी मामला। और पिछले भी ओवर जिस बार आए थे विष्णु गेंदबाजी करने, तब थर्ड अंपायर का डिसीजन उनके पक्ष में आया था। इस बार वीर मराठी को एक ब्रेक मिलता हुआ, हालांकि जैसे कि आपने देखा बहुत साफ था कि नॉट आउट थे। केलकर, इनका यहां पे बने रहना बहुत जरूरी। पूरे 20 ओवर अगर खेलें तो वीर मराठी फिर भी एक ऐसा स्कोर खड़ा कर सकते हैं जिसके बाद फाइट करने की काबिलियत इस टीम में है। जी हाँ, संयम से खेलना होगा यहां से वीर मराठी को, और सब्र का फल मीठा होता है। Good backup, Vicky, good backup. विष्णु ने पिछले ओवर में बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी और एक बहुत इंप्रेसिव चीज इनके बारे में थी कि अपने एंगल ऑफ डिलीवरी को बहुत वेरी कर रहे थे। कभी थोड़ा वाइड ऑफ द क्रीज आते थे, कभी क्लोजर टू द स्टंप्स। चेन्नई राइनोज के समर्थक जरूर बहुत बहुत खुश होंगे जिस तरीके से अब तक का मैच चला है उनके लिए। 8वें ओवर में ही 5 विकेट निकाल चुके हैं 2 बार के विजेता CCL के। A question being asked. He's certain about it. The wicketkeeper was absolutely certain. Animated is the wicketkeeper. He was really certain about it. Ramana. जी हाँ, बहुत बहुत उत्सुक थे कि यहाँ पे डिसीजन उनके पक्ष में मिले। जरूर रिप्ले पे देखते हुए ऐसा ही लग रहा है कि कोई एज नहीं लगा था। But he needs to know that
It's not out till the umpire gives it out. Crowd has come in good numbers. काफी तादाद में लोग आए हैं और अपनी टीम को सपोर्ट करने चेन्नई राइनोज, और बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे। और उनके लिए बड़ा दिन है क्योंकि कर्नाटका की टीम जो है बुलडोजर्स, वो भी एक्शन में होगी दूसरे मुकाबले में। Dot ball to end the over. They are going through, in fact, for a quick single. Eventually they make it. End of the 8th over, 39 for 5. After 8, 39 for 5. Have a look at that. Jiva has been outstanding. 3 overs, 10 dot balls in that. 24 runs he has conceded, but has picked up 3 vital wickets. Vishnu and Shantanu also giving him good support. But 3 for 24 of 3. Magnificent. ये इस पर ध्यान देना होगा। यस, हल्के हाथों से ढक लिए, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ मौजूद है और 1 रन ले ली। जी हाँ, वक्त बहुत बचा है आपके पास, कई गेंदें हैं, 71 गेंदें अभी भी हैं, तो अगर आप हर गेंद पे भी 1 रन लेंगे तो कम से कम 111 या 120 के आसपास पहुंच सकते हैं। एक्स्ट्रास भी आएंगे, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा मिलता हुआ शांतनु का वाइड। तो देखिए, यहां से अगर विकेट्स हाथ में रखें तो कम से कम 8 रन प्रति ओवर तो बहुत बढ़िया है, उससे ज्यादा अगर हो तो बहुत बड़ा बोनस। थोड़ा सा प्लान करना पड़ेगा यहाँ पर। 15 ओवर तक अगर ये दोनों टिके रहे तो फिर आखिरी के 5 ओवर में आप मार सकते हैं। You can also follow us on www.facebook.com/CCL2020. और अगर आप प्रेशर डाले बॉलर पे तो वाइड के रूप में भी आपको काफी रन्स मिलेंगे, तो ध्यान देना पड़ेगा। 15 ओवर तक अच्छी तरह से बैटिंग करनी पड़ेगी। एक बार फिर से बहुत डिसिप्लिन गेंदबाजी दिखाई है आज चेन्नई के गेंदबाजों ने। शायद पूरे पारी में 1 या 2 ही ऐसी गेंदें थी जो थोड़ी सी वाइड थी, या लेग साइड पे या ऑफ साइड पे, वरना सब स्टंप टू स्टंप, जिसे हमेशा खेलना भी मुश्किल होता है। बतौर बल्लेबाज आप हमेशा थोड़े से डबल माइंड में रहेंगे कि क्या आपको बड़ा शॉट खेलना चाहिए कि नहीं, और जब 5 विकेट आपके खो चुके हैं तब और मुश्किल बन जाता है। हल्की सी मिसफील्ड, बट यहाँ पे अगर आप देखें 2 गेंद पहले एक अच्छी स्टॉप की थी वहां पर शॉट फाइन लेग पे वेंकट ने। क्या बात है, पैशन, ये इनको खास बात है सीसीएल की, सबसे बढ़िया बात। मानना पड़ेगा प्रोफेशनल क्रिकेटर्स नहीं है, उनके प्रोफेशंस कुछ और है, फिर भी यहां आकर लगन से खेलते हैं। आपको याद दिला दे, बिग ब्रदर फाउंडेशन डोनेट्स ₹1000 फॉर एवरी रन स्कोर्ड इन सीसीएल 2015। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव अगर आप फील्डिंग साइड हैं तो आप उम्मीद करेंगे कि दूसरी टीम जितने रन बनाए उतना ही अच्छा है। इस बार आउटसाइड ऑफ स्टंप बीट करते हुए ओवर की समाप्ति 45 पे 5।
शरद खेलकर 15 रन बनाकर और गोरे 4 रन बनाकर नाबाद। शरद खेलकर ने एक बढ़िया छक्का मारा है उस 15 रन में। 45 पे 5, 9 ओवर की समाप्ति। नए गेंदबाज आते हुए वो है संजय, और इनकी रनअप अब तक की शायद सबसे लंबी है पार्लेजी एंड से। देखते हैं गेंदबाजी कैसी करेंगे। जैसा कि हमने पहले भी बताया, चेन्नई राइनोज टॉस जीत के सबसे पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था और उसकी पुष्टि करते हुए बहुत अच्छी नपी तुली गेंदबाजी की है अब तक चेन्नई के सारे ही बॉलर्स ने। जी हाँ, बढ़िया गेंदबाजी की है। यहाँ पर दाद देनी पड़ेगी इनकी। बिल्कुल लाइन एंड लेंथ पर सारे गेंद, और हर एक जो नया बॉलर आया है यहाँ पर देबायन, सबने शुरुआत अच्छी की है। सबसे चमत्कारी रहे उनके कप्तान जीवा, जिन्होंने पहले ही 2 ओवर्स में वो 3 विकेट्स ले लिए थे। वीर मराठी के बल्लेबाजों ने भी उनको काफी सहायता की। 2 विकेट। एक और शॉट, पर ये सर के ऊपर से जाएगी पॉइंट के फील्डर के, और चौका। इसी के साथ 50 रन भी पूरे हुए और राहुल गोरे के लिए उनके पारी में पहला चौका। 10वें ओवर में 50 हुआ है, लेकिन यहां से यही सोचेगी वीर मराठी की धीरे धीरे। How would you approach this, Amol? You would break it into chunks of 2 overs or 3 overs from here on? I think 3 overs. And just communicate with your partner. Try and tell him to stay at the crease. Don't go for rash shots because not many wickets left. Goes in the air again. They're taking their chances. This time falls way short of the deep cover fielder. There's no need to take those chances. You just have to realize what the situation is. It's 51 for 5, almost halfway through the innings. Need to be a touch careful of your approach. सिर्फ एक ही रन मिला था, यानी शरद केलकर अब स्ट्राइक पे। वो भी बड़ा शॉट लगाने का प्रयास, बाहरी किनारा, 4 रन के लिए जा सकते हैं। जी हां, 4 मराठी को अच्छा ओवर उनके लिए साबित होता हुआ। Where fortune favors the brave, he's taking his chances, isn't he? Khelkar on 20 of just 16 deliveries. This was a thick outside edge. Nice floaty delivery and an outside edge which goes to the boundary. The bowler clearly not happy, and why should he be? Another crisp shot, magnificent. He's turning it on here. Sharad Khelkar goes to 24 of 70. And in a course of 20 overs, there's always going to be one bowler who will be targeted, irrespective of how much pressure a batting side is experiencing. और कुछ ऐसा ही हो रहा है यहाँ पे संजय के साथ। 14 रन दे चुके हैं और इस ओवर में फिलहाल 3 चौके और 2 सिंगल्स। ये सबसे बढ़िया शॉट था। बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच, संपर्क अच्छा और नतीजा भी अच्छा। बढ़िया गेंद, आखिरी गेंद। 10 ओवर की समाप्ति, 59 पे 5।